Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to discuss Pythagoras theorem. We are going to do the theoretical proof of Pythagoras theorem. This theorem, Pythagoras theorem, you are studying from class 7 onwards. First time it was introduced in class 7. From 7th onward you are studying this theorem, and you also know that in the one more concept you know about this right angle triangle, that is the hypotenuse is the longest side. Right, now we are going to do the proof of Pythagoras theorem. What Pythagoras theorem says that in a right angle triangle, this theorem is applicable only in case of right angle triangle. In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. Hypotenuse square is equal to sum of squares of other two sides. In the lower classes you have remembered in this way that h square equal to p square plus b square. Same thing is this. Square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. This is the definition of this. This is the statement of Pythagoras theorem. Okay, I have made one right angle triangle here. Taken right angle at B, and this hypotenuse, you know, side opposite to the right angle. The square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. That means what we need to prove, that AC square is equal to AB square plus BC square. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी मैंने. कंस्ट्रक्शन क्या है? जिस वर्टेक्स पे, the vertex at which right angle is formed, which is that here B, through that vertex we'll draw one perpendicular to the hypotenuse. This is the construction work. So construction है, better to make it dotted. Through B, draw BD perpendicular to AC. This is our construction. Now इसमें जो main step है, as I have explained it earlier also many times, that if we prove two triangles similar, and if those two triangles have one side common, if two triangles are similar and having one side common, then what we get from there, we get the square of that side. जो साइड कॉमन होती है सिमिलर ट्राइंगल्स में, तो उस साइड का हमें स्क्वायर मिलता है. कहाँ से? जब सीपीएसटी से सॉरी, जब हम रेशोज लिखते हैं, ठीक है, तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस साइड का स्क्वायर हमें मिलता है. विच साइड स्क्वायर? विच इज कॉमन टू द टू ट्राइंगल्स विच आर similar. This is the concept we are going to use here to prove this Pythagoras theorem, the theoretical proof of Pythagoras theorem. See, if you see in this smaller triangle, this one ADB, in this triangle and the whole triangle ABC, they are having one side common. Which side common? That is AB. AB is in this triangle also and in the whole triangle also, right? They are having one side common. If somehow I can prove these two triangles, this smaller one and this whole triangle similar, if somehow I can prove them similar, then from there I'll get the square of AB, right? And then same way I can prove this triangle, the smaller one and the whole triangle similar. If somehow I can prove them similar, then remember they have one side common also, which is BC. BC is common. BC is in this triangle also and in the whole triangle also. So from there we'll get the square of BC. We get the square of AB. We get the square of BC. What we need? AB square plus BC square. Then we'll just add the two. बस done. थ्योरम हमारी प्रूफ हो जाएगी. ये जो मेन कंसेप्ट है इसमें, उस पे फोकस करना है. ठीक है, मेथड पे फोकस करना है. कर क्या रहे हैं? द स्मॉलर ट्राइंगल एंड द होल ट्राइंगल विल गेट स्क्वायर ऑफ AB. दिस स्मॉलर ट्राइंगल एंड द होल ट्राइंगल विल गेट स्क्वायर ऑफ BC. जस्ट वील एड द टू, विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ लेट अस डू इट. नाउ इन राइट ट्राइंगल पहले कौन सी ट्राइंगल लेनी है? अप टू यू. द स्मॉलर वन यू कैन टेक और द होल ट्राइंगल यू कैन टेक, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. आई टेक ADB. आई नेम इट ADB. फर्स्ट ट्राइंगल को नेमिंग करना मेरी चॉइस है, सेकंड को उसके अकॉर्डिंगली ही जाएगा.
ADB इसको दिया मैंने, और दूसरी लेनी मैंने होल ट्राइंगल। अब इसका नेमिंग कॉरेस्पॉन्डेंस का बड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है, ठीक है। ADB, तो सेकंड ट्राइंगल का नाम जो आएगा, पहली बात एंगल A इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, सो मींस A की कॉरेस्पॉन्डेंस A के साथ ही है, A हियर इट इज आल्सो A। D इज द वर्टेक्स वेयर द राइट एंगल इज फॉर्म्ड, और D की वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सी होगी जहां पे राइट एंगल बना है, दैट इज B। B सेंटर में आएगा, तो बाकी थर्ड स्पेस खाली बची, वहां पे क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली C। तो फर्स्ट ट्राइंगल्स नेम इफ ADB, देन सेकंड ट्राइंगल्स नेम मस्ट बी ABC। ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से करने वाली चीज़ है, यहाँ गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि यहाँ मिस्टेक होती है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी और अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं गलत ही कुछ आंसर ला के देगी वो, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा ठीक नहीं बनने वाला है। लेट्स प्रूव देम सिमिलर, दे आर सिमिलर, वेरी मच सिमिलर, एंगल इज कॉमन, ठीक है, एंड वन इज ऑफ राइट एंगल, ADB is equal to angle ABC, each 90 degree, right? Two angles equal, done. Triangles are similar, therefore triangle ADB is similar to triangle ABC, ठीक है जी। ये triangles होगी हमारी similar, which similarity this is, AA similarity, ठीक है। by CPST, देखो जरा कौन सी साइड कॉमन है यहाँ पे, विच साइड इज कॉमन, AB, जिसका स्क्वायर मिलने वाला है। तो इस चीज को माइंड में रख के CPST वाली वो जो रेशोज हैं वो लिखनी है। AB का स्क्वायर चाहिए, टेक इट इन दैट वे, AB फर्स्ट थर्ड ओवर AC फर्स्ट थर्ड, है ना। और AB का स्क्वायर कब बनेगा, जब दूसरी रेशो में डिनोमिनेटर में AB आएगा, सो दैट जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी गेट AB स्क्वायर। मतलब AB मैंने क्या लिया, फर्स्ट सेकंड, तो इधर फर्स्ट सेकंड क्या है, AD, दिस इज बाय CPST। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो फर्स्ट ट्राइंगल लिखी है उसके पार्ट्स न्यूमरेटर में लिखे जाते हैं, जो सेकंड ट्राइंगल लिखी है उसके पार्ट्स डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। इसको हमेशा ध्यान में रखना, उल्टा पुल्टा ना कहीं हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें गलत सॉल्यूशन मिलने वाला है, ये ध्यान रखना प्लीज। नाउ जस्ट हमने दो साइड की रेशो ली, तीसरी लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो चाहिए वो यहीं से मिल रहा है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई AB इंटू AB स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AC इंटू AC इंटू AD। टेक इट इक्वेशन नंबर 1। रिमेंबर व्हाट वी सेड कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनमें एक साइड कॉमन है, देन वी गेट द स्क्वायर ऑफ दैट साइड। This triangle and the whole triangle were having AB common, we got the square of AB from here. Similarly, we'll take this triangle and the whole triangle, we'll prove them similar. From there we'll get the square of BC and we'll prove it. ठीक है, हमने इसको प्रूव करना, सिमिलरली नहीं लिखना। सिमिलरली लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम इसको प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल छोटी वाली ले लूँ, नाम जैसे देना है वैसे दे दो, जैसे देना है वैसे दे दो। मैं दूं BDC, ठीक है, एंड ट्राइंगल सेकंड का फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आएगा। पहले देखो एक एंगल कॉमन है, कौन सा है कॉमन दोनों में, C, तो C थर्ड प्लेस पे रखा है तो यहाँ भी C थर्ड प्लेस पे ही आएगा। ठीक है, दूसरा हिंट है जहाँ पे राइट एंगल बना है, राइट एंगल बना है छोटी ट्राइंगल में D पे, और वो रखा है मैंने मिडल में, वहां राइट एंगल बना है, राइट एंगल बना है B पे, B शुड बी केप्ट इन द मिडल। ठीक, खाली स्पेस बची उस पे थर्ड वर्टेक्स डालो, कौन सा बचा है अब, ओनली A। इफ द फर्स्ट ट्राइंगल्स नेम आई हैव गिवन BDC, द सेकंड्स नेम मस्ट बी AB। सी दे आर सिमिलर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन, और वैसे ही एक 90 डिग्री का एंगल है, इसमें ये वाला 90 का, इसमें ये वाला 90 का। एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल ABC, ईच 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC एंड दिस इज अगेन बाय एंगल सिमिलैरिटी। रिमेंबर AA इज शॉर्टकट टू द AAA।
ठीक है। सो सिमिलर, कौन सी साइड कॉमन, BC इज कॉमन, तो वी आर गोइंग टू गेट द स्क्वायर ऑफ BC फ्रॉम हियर। लेट्स टेक इन दैट वे, फर्स्ट थर्ड BC, फर्स्ट थर्ड ओवर फर्स्ट थर्ड, दैट इज AC। BC का स्क्वायर तब मिलना है, यहाँ डिनोमिनेटर में BC, सेकेंड थर्ड BC, सेकेंड थर्ड DC, दिस इज बाय CPST, ठीक है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई BC इंटू BC, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। टेक इट इक्वेशन नंबर 2, वी गॉट द स्क्वायर ऑफ AB एंड वी गॉट द स्क्वायर ऑफ BC। अब करना क्या है, दोनों को प्लस करना है, जस्ट ऐड 1 and 2, 1 + 2। ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, पहले इसका स्क्वायर बनाएंगे फिर इसका स्क्वायर बनाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल आना चाहिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, द थ्योरम विल बी प्रूव्ड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड प्लस लेफ्ट साइड, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड प्लस राइट साइड, AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। अच्छा, C द राइट हैंड साइड, आई कैन टेक दिस AC कॉमन, ठीक है, ये AC कॉमन आ जाएगा, टेक इट कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, AD प्लस DC, ठीक है जी। दिस इज AC इंटू AD प्लस DC, देखेंगे ध्यान से, AD प्लस DC, व्हाट इट गिव्स अस, AC into AC, that is AC square। C, the theorem is proved. This is the proof of Pythagoras theorem. Now we'll discuss the converse of Pythagoras theorem. This time the proof is not there in the syllabus, otherwise it was there. So we are just going to discuss what is converse of Pythagoras theorem and we'll take 1 or 2 examples of that. Converse of Pythagoras theorem, opposite of the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem was in a right angle triangle. Right angle triangle was given. Then what we need to show that the square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. This was the statement of Pythagoras theorem. Now the converse of Pythagoras theorem. Converse में generally क्या होता है? Given goes to in the to prove part and to prove part comes to the given part. ठीक है? Simple thing is this. Now converse of Pythagoras theorem says that if in a triangle the square of one side, if in a triangle the square of one side is equal to sum of squares of other two sides, if the square of one side is equal to sum of squares of other two sides, then that angle opposite to the first side, remember when we say the square of one side is equal to sum of squares of other two sides, then this one side is obviously out of those three must be the longest side. It is very clear. अगर सिंगल साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है, दैट मीन्स दैट सिंगल साइड इज लॉन्गर देन दोज टू साइड्स, तो इट इज अंडरस्टूड कि दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन दैट ट्राइंगल। इफ द स्क्वायर ऑफ, if I say this in the other term, that if the square of the longest side, we can also say in this way also, if in a triangle the square of longest side is equal to sum of squares of other two sides, then angle opposite to that first side, first is obviously the longest of all the three, ठीक है, then angle opposite to the first side means the longest side is a right angle, तो वो राइट एंगल होगा इस साइड के ऑपोजिट। एंड इफ इन अ ट्राइंगल देयर इज वन राइट एंगल, दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल, डन। दिस इज द कन्वर्स ऑफ दिस पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, मैंने डायग्राम ऐसा बनाया है, आई टेक से दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। आई एम गिवन द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ हमें दी है। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा है, चेक वेदर दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। सो सिंपल थिंग इज दैट हु विल टेल अस वेदर इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, ऑब्वियसली द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सेज कि तीनों साइड्स के स्क्वायर्स निकाल लो और अगर वो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आया, देन डन, इट्स राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज इट्स नॉट।
तो तीनों साइड्स के स्क्वायर निकाले, ए बी स्क्वायर, ठीक है, 6 स्क्वायर दैट इज 36, बी सी स्क्वायर 10 स्क्वायर दैट इज 100 एंड ए सी स्क्वायर 8 स्क्वायर दैट इज 64। सो ये लॉन्गेस्ट साइड है, इसको अलग रखो, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, 36 प्लस 64 what it gives us, 36 plus 64 is 100, right? See, 36 that was AB square, 64 that was AC square is equal to 100 that is BC square. So BC square in दो sides के squares का sum है, that means this must be a right angle triangle and the question is now कि right angle बनेगा कहाँ पे, वो जो longest side है, जो first side longest BC थी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, इसके opposite right angle बनेगा, तो right angle कहाँ पे होगा, therefore angle A will be of 90 degree, hence we can say triangle ABC is a right angle triangle। और अगर ये वेरीफाई नहीं होता है, ठीक है, सपोज करो मैं इसको 11 ले लेता हूं, तो 11 का स्क्वायर कितना आ गया 121, 36 प्लस 64 तो 100 हुआ, दैट इज नॉट इक्वल टू BC स्क्वायर, सो ये नहीं है इक्वल, हेंस दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, ये हमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बताती है, और दिस इज हाउ वी विल यूज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चंस तो रहेंगे इसके वर्कशीट में, बट इसका थ्योरम का प्रूफ नहीं है, ठीक है। आई होप सो कि जो हमने आज किया है दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम, प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। दो टाइप के प्रूफ हैं, एक है आपका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, प्रैक्टिकल प्रूफ, जो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, दूसरा है थ्योरेटिकल प्रूफ, ठीक है। सो ये प्रूफ हमने किया पाइथागोरस थ्योरम का, और हमने स्टेटमेंट को समझा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का। आई होप सो कि अब आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।